So today's topic is screening of industrially important microorganisms. In the last lecture, we have discussed and seen different important microorganisms which are used in industrial fermentation, or you can say fermentation biotechnology. So how we screen those microorganisms which are industrially important. In this lecture, we are going to see how the screening can be done, and it may be you can say many of things you already have learned in your microbiology course. I hope you people know, keep it kept in your mind what you have learned in your previous classes. But we will move further. So, what is screening? Screening is isolation, detection, and separation of microorganisms of our interest from a mixed population by using highly selective procedure is called screening. इसमें स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है या सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाइवर्स है। उस डाइवर्स सोर्स में से आपने अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जो सिलेक्ट करना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब सबसे पहली बात है जी, डाइवर्स सोर्स क्या है हमारा? डाइवर्स सोर्स कुड बी एनीथिंग, water, air, some food, or some other, you can say, if they are, obviously we are discussing the fermentation biotechnology and only the useful microorganism we are discussing. So it is the source, food may be one of the sources. So from these sources, there are so many of microorganisms, so we need to isolate only one or two microbes which are for the benefit of us. So how we go through this screening procedure? So first of all, about the sources. Sources, as I already told you, they are from the food like milk and cheese. If you want to make yogurt at the industrial scale, so you need sources of microorganism from milk or from cheese. Likewise, if you select environment, in environment you can get the microbe from air, water, soil, from any of these sources. And even you can get the microbes from the compost and other sources. You know, microbes are everywhere. So when they are everywhere, so the good microbes could be everywhere. So your potential source is makes your study one of the research projects. ठीक है, मतलब एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो फूड में भी अवेलेबल है, वो सॉइल में भी है, वो आपकी किसी कंपोस्ट में भी पाया जाता है। तो आप अपना सोर्स चेंज करके पूरी आप एक अलग से रिसर्च डिजाइन कर लेते हैं इस तरीके से अपना सोर्स चेंज करके। आप लोग अब तक मेरा ख्याल है लिटरेचर रिव्यू वाले उससे गुजर आए हुए हैं, आप लोगों ने काफी पढ़ लिया है कि लिटरेचर कैसे सर्च करते हैं, पेपर्स कैसे राइट अप होते हैं, थीसिस का किस तरह से लिखा जाता है। तो आपने जब स्टडी अगर डिटेल आपने पढ़े हों और आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर लिटरेचर सर्च किया हुआ हो, तो आपको पता होगा कि एक स्टडी जिसका हम अगर सपोज एप्लीकेशन कंसीडर करें, जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि योगर्ट मेकिंग को हमने देखना है कि इस पे कितना काम हो गया। ठीक है, जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि योगर्ट मेकिंग के जो जो पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी पेपर में उसका सोर्स जो है वो मिल्क है, किसी पेपर में उसका सोर्स चीज है, किसी पेपर में उसका सोर्स कोई सॉइल सैंपल है, कोई वाटर सैंपल है, वहां से वो उन्होंने आइसोलेट किया और अल्टीमेटली उन्होंने क्या बनाई है? योगर्ट। ओके, सो these are the sources. From these sources, the first step is screening. ठीक है, स्क्रीनिंग ओवरऑल टर्मिनोलॉजी समझ आती है कि आपने अपने सोर्स के अंदर से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन भी कौन सी होगी? रिग्रस सिलेक्शन है, कोई रिलैक्स सिलेक्शन नहीं है, रिग्रस सिलेक्शन है। आपने उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करना है, उन माइक्रोब्स की पूरी पूरी बायोकेमिस्ट्री चेक करनी है कि वो कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव हैं, कैटलेज हैं, हाइड्रोलेजेस हैं, कौन से वाले हैं, वो सारा आपने स्टडी करके एस्टैब्लिश करके फिर आपने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, so in screening there are two further divisions: primary screening and secondary screening. As the name show, the first come first, so we called it primary, and the secondary is the second one, which comes after the primary screening. So what things should be considered while screening? First of all, the source sample from where you are going to take your microorganism. That source is first of the thing which you need to consider. आपका सैंपल कहाँ से आ रहा है? आप सॉइल से ले रहे हैं, वाटर से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं, किसी कंपोस्ट से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जब ऑब्वियसली जो सैंपल आप कंपोस्ट से उठाएंगे उसकी इनिशियल क्लीनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप उसकी, वैसे तो आपने सीरियल डाइल्यूशन का लफ्ज सुना हुआ है,
कि आप माइक्रोबियल सैंपल जहाँ से भी लेते हैं उसकी सीरियल डाइल्यूशंस करते हैं, उन डाइल्यूशंस को फिर आप अप्लाई करते हैं एगर प्लेट के ऊपर और फिर आपके पास पॉपुलेशन एक बल्क आना शुरू होती है। लेकिन जैसे-जैसे आप सीरियल डाइल्यूशन करते जाते हैं, आपके पास नंबर ऑफ कॉलोनीज़ जो हैं वो प्लेट के ऊपर मैनेजेबल आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप एक ओरिजिनल सोर्स लेके प्लेट पे ग्रो करें एगर प्लेट के ऊपर तो वो एक इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड ग्रोथ आएगी कि उसमें से आप कुछ भी आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो माइक्रोबियल स्टडीज में सीरियल डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा याद रखना है कि वो क्या होता है, कैसे बनता है। मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो आपने पहले पढ़ ली है, बट यू हैव टू यू कैन रीमेमोराइज योर ब्रेन टू गेट दैट थिंग। सो नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट। सो आपका जो डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको तो पता है ना कि आप किसको देखना चाह रहे हैं, बैसिलस है, इकोलाई है, लेक्टोबैसिलस है, क्या है। ठीक है, जब आप ये चीजें डिफाइन कर लेंगे कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो लिटरेचर रिव्यू से आपको ये पता चलेगा कि आपका माइक्रोब जो है वो किस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट पे अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, तो आप फिर वो न्यूट्रिएंट सिलेक्शन की तरफ उसको लेकर जाएंगे, आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है जी, तो वो न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी है वो आपने लाजमी प्रोवाइड करने हैं। ठीक हो गया। एंड द थर्ड इज चॉइस ऑफ डिटेक्शन। आप डिटेक्ट कैसे करना चाहते हैं, प्रॉपर आइसोलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बर्गी मैनुअल है, उसके उसमें सीक्वेंस बता रखा है कि माइक्रोब्स को आपने किस तरीके से आइसोलेट करके फिर आगे कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं जो उसके होते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी चॉइसेस ऑफ डिटेक्शन आपके पास अवेलेबल है, लिटरेचर में अवेलेबल है, आपने उसको फॉलो करते हुए जो भी पोटेंशियल आपका माइक्रोब है जिसको आपने आइसोलेट किया होता है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। वो कोएगुलेज पॉजिटिव है, वो हाइड्रोलेज पॉजिटिव है, वो क्या कहते हैं कैटलेज नेगेटिव है, वो सल्फाइड प्रोडक्शन करता है या नहीं करता है, वो एरोबिक है, वो एनारोबिक है, फैकल्टेटिव है। ये सारी चीजें आपने उस पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चेक करनी है। ठीक है, तो ये बहुत लेबोरियस भी काम है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ये कि ये सब आप करेंगे तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग दो तरह से है, प्राइमरी सेकेंडरी स्क्रीनिंग है। प्राइमरी स्क्रीनिंग में ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको आप किस तरह मेजर कर सकते हैं, बाय यूजिंग डाइज। ठीक है, और अगर एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग है तो आप जो मेथड यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, क्राउडेड प्लेट टेक्निक, जो कि नॉर्मली आप लोगों ने शायद कर रखी हुई हो, जिसके अंदर आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं और जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग होते हैं उनके गिर्द क्लियर जोन डेवलप हो जाता है। दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्राउडेड जोन टेक्निक। नेक्स्ट इज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कोई विटामिन, कोई हार्मोन्स, कोई इस तरह के यूजफुल कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, उनके लिए आप कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, ऑक्सेनोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट इज इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में आप क्या करते हैं कि वो मीडिया के अंदर मिनिमल मीडिया यूज करके उसमें सिर्फ वही प्रोमोटर्स डालते हैं या वही कंटेंट डालते हैं न्यूट्रिएंट का जिसपे आपका पोटेंशियल माइक्रोब जो है वो सिर्फ वही ग्रो कर सकता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव सिलेक्शन के थ्रू डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपने मीडिया के अंदर देते हुई चीजें हैं जो आपका डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ यूज करने की कैपेसिटी रखता है, फिर आप उसको फर्दर प्लेट पे ग्रो करते हैं, फिर उसकी स्ट्रीकिंग करते हैं, मजीद स्ट्रीकिंग करते हैं, तो आपको सब कल्चरिंग के मेथड से फिर आप अपना प्योर माइक्रोब जो है आइसोलेट कर लेते हैं। बात समझ आ रही है, हम कहाँ से शुरू हैं, हम सोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को नहीं, मैंने MMG में कराया था ये प्रैक्टिकल कि हमने उनको डिफरेंट एयर सैम्पलिंग की थी, कैफेटेरिया के एरिया से, गेट के एरिया से, आपकी क्लासरूम के अंदर हमने प्लेट्स ग्रो करके सॉरी बना के, जैसा नॉर्मली प्लेट्स बनाते हैं एगर की एंड एगर की, हमने उनको ओपन छोड़ा कोई मेरा ख्याल है 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, उसको उनको कवर करके इनक्यूबेट कर दिया। जब नेक्स्ट डे फिर उन्होंने हमको प्लेट्स को 24 आवर के बाद चेक किया तो उसके ऊपर तो इतनी ग्रोथ थी, फंगल की भी ग्रोथ थी, और लाइक सिंपल आपने प्लेट खोल के रख दी और छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मली जो चीजें आप खुद भी इवन बैठे हुए हैं इस तरह से, तो आपके फेस के ऊपर बहुत कुछ है, वो अलग बात है, वो खूबसूरत से आश्कार नहीं कर रहा चीजें, लेकिन ये कि अगर वो उसको प्रॉपर मीडिया जैसे न्यूट्रिएंट एगर की फॉर्म में प्लेट पे मिला, उसके ऊपर से फिर उन्होंने इतने ज्यादा माइक्रोब्स आइसोलेट किया, इवन के कैंटीन का टैप वाटर भी यूज किया था।
जिससे वो वॉशिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें भी माशाल्लाह। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। सो द प्राइमरी स्क्रीनिंग, सो इसमें आप क्या करते हैं, द फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें आप डिटरमाइन करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, आपके पोटेंशियल कौन से हैं। और ये सारी मैं बार बार बता रही हूँ, जब आप कोई एक माइक्रोब सेलेक्ट कर लेंगे ना, उससे रेलिवेंट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिटरेचर में मिलेगी, आप उसको स्टडी करेंगे, फिर आप ये सारा कुछ जो है प्रोसेस एक्चुअली परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया? So it does not provide much idea about the production or yield of potential microorganism. Primary screening में आपको ये नहीं पता चलता कि आपका जो अपना potential microorganism जिसको आप चाह रहे हैं स्टडी करवाना, वो कितनी yield देगा। सपोज अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कोई हार्मोन प्रोड्यूस करता है या कोई यूजफुल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है, हमें ही पता चलेगा कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म कितनी क्वांटिटी में वो एक्सक्रीट करेगा वो चीज। वो हमें कब पता चलेगा, जब हम प्योर कल्चर बना लेंगे उसका और उसको फिर फर्मेंटर की तरफ लेकर जाएंगे या स्मॉल फ्लास्क में लिक्विड मीडिया में ग्रो करेंगे, तब पता चलेगा कि वो कितनी यील्ड दे सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है वो तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो यील्ड कम है उसकी। ठीक है, फिर हम उस केस में क्या करते हैं, हम उसकी जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, हम उसके जीन निकाल लेते हैं वो, और वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लगाते हैं जिसका प्रोडक्शन नंबर ज्यादा होता है, जिसका कॉपी नंबर ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसका प्रमोटर जो है वो बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत तेजी से उसको एक्सक्रीट करवा सकता है, फिर हम उसके अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक मैनिपुलेशन भी जो है आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा है। ठीक हो गया? फिलहाल ये वाला मेथड तो सिंपल किसके लिए है, जब आपका सोर्स जो है वो कौन सा है, जनरल सोर्स है, कोई भी ओपन सोर्स आप ले रहे हैं उसमें से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? And it just separate out only a few microorganisms, only a few have commercial value while discarded valueless microorganisms. Obviously जब आप पहला स्टेप लेकर चलेंगे, सोर्स कोई भी पानी लिया आपने, ठीक है, पानी में से आपने प्लेट पे ग्रो किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो आपके पास बहुत ज्यादा कॉलोनी नंबर आएगा, आप उसमें से कुछ भी आइसोलेट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप उस प्लेट को कुछ नहीं करेंगे, आपका जो सैंपल है उसको आप डाइल्यूट करेंगे, उसकी डाइल्यूशंस बनाएंगे, उसकी डाइल्यूशंस बना के उन सब डाइल्यूशंस को आप प्लेट पे ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपने जिस जिस तरह से डाइल्यूट करते गए हैं आपकी प्लेट उतनी फाइन होती चली गई है। ठीक है, फिर उस फाइन प्लेट में जहां पर बहुत सेपरेटेड कॉलोनीज आती है ना जिस प्लेट के अंदर, उससे फिर आप पिक करते हैं, वहां मुख्तलिफ तरह के माइक्रोब्स एक साथ ग्रो हुए हैं, आपने उनको उठाना है, उनको कल्चर सब कल्चर करना है, सब कल्चर करने के बाद उनको दोबारा स्ट्रिकिंग के थ्रू प्लेट पे ग्रो करना है। ठीक है, उसकी दोबारा उसमें से फिर एक कॉलोनी को उठा के फिर उसको दोबारा से जो है आपने उसको सब कल्चर करना है, तब कहीं जाके आपके पास प्योर कॉलोनी आती है, प्योर कल्चर आता है, उसको फिर आप स्टॉक बना के रखते हैं। स्टॉक का आइडिया, स्टॉक क्या होता है, माइक्रोब्स के स्टॉक्स बनाए हुए हैं, कभी नहीं बनाए माइक्रोबियल स्टॉक्स। माइक्रोब का स्टॉक यही होता है कि जो प्योर माइक्रोबियल कल्चर है ना, उसकी एक्टिव फॉर्म ओडी लेनी आती है। कितने नैनोमीटर पे ओडी लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ओडी पता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो माइक्रोब्स को ग्रो करते हुए कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी पे मेजर करते हैं उनको, 600, 60 नहीं, 600 ओडी 600। कभी लिटरेचर रिव्यू किया और माइक्रोबियल पेपर्स पढ़े हों तो वहां ओडी के नीचे छोटा सा लिखा होता है, 600 के ऊपर आप नैनोमीटर पे चेक करते हैं माइक्रोब की क्या ग्रोथ आ रही है। वैसे तो विजुअली भी पता चल जाता है कि जो आपका कल्चर आपने इंक्यूबेट किया है फ्रेशली वो कितना क्लियर है। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है, 24 घंटे के बाद मीडिया के अंदर माइक्रोब की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, विद इन एन आवर जो है वो कितनी होती है, ये सारा जब आप रिसर्च करते हैं ना तो उसमें ये चीजें आप इसमें बहुत बार बार आती हैं। बात समझ आ गई जो हमने बात शुरू की थी कि वैल्यूलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको कैसे सेपरेट होंगे, कि जब आप इनिशियली ग्रो करेंगे उसके बाद सीरियल डाइल्यूशंस बनाएंगे और उसमें से आपकी जो फाइन प्लेट आती है ना, उसको कल्चर तो आपने लगा दिया, लेकिन उस माइक्रोबियल सैंपल की फिर आपने सारे टेस्ट लगाने होते हैं जो मैंने पहले बोले हैं। ठीक है, जो आप मैंने वो पहले बताया, कैटलेस, कोएगुलेस, ये सारे की सारी बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे याद है ना, मैंने स्टूडेंट को काम करवाया था MBS की, तो उससे मैंने ये सारे करवाए थे, तो मैं आपको उस पे से पढ़ के बता देती कि कौन कौन से टेस्ट। तो आपको खुद भी बताने चाहिए स्टेज पे कि माइक्रोब्स को की कैरेक्टरिस्टिक को या उनकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अपनी एक्टिविटी लिख लें आज की। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रोब्स, what are the tests involved in?
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए, उसके बाद नाम के बाद थोड़ा बहुत प्रोसीजर भी पता होना चाहिए कि क्या है। प्राइमरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, एसिड मतलब इट विल इफेक्ट बाय पीएच। ऑब्वियसली इसका मतलब है पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीएच न्यूट्रिएंट मीडिया की जो जो आपने उनको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करना है उसकी पीएच इंपॉर्टेंट है। ठीक है। So the pH indicating dyes may be used for detecting microorganisms that are capable of producing organic acid. तो आपने कौन सी डाइज यूज करनी है जो पीएच को इंडिकेट करती है? कौन कौन सी डाइज इंडिकेट करती हैं पीएच चेंज को? कौन कौन सी डाइज इंडिकेट करती हैं? फिनोल और न्यूट्रिल रेड, ब्लू, ये सारी की सारी इस तरह लिखो कौन कौन सी डाइज हैं। pH indicating dyes names. What are pH indicating dyes and name few of them apart from these two जो मैं यहाँ लिखे हैं, इनके अलावा बताना, यही ना लिख देना। ये एक्टिविटी मैं LMS पे डाल दूंगी, ये वहां पे सबमिट करानी है। ठीक है जी। सो ये डाइज जो है ऑब्वियसली जो पीएच इंडिकेटिंग डाइज हैं वो पीएच के अकॉर्डिंगली अपना कलर डेवलप करेंगी। ठीक हो गया। सो आप इनको क्या करते हैं, इन डाइज को आप एगर मीडिया में डाल देते हैं। जब आप मीडिया बना रहे होते हैं, आपका जो पाउडर्ड मीडिया उसको पानी में डाला है, उसको मिक्स किया है, उसको आपने इनोकुलेट कर दिया। इनोकुलेशन के बाद जब वो गर्म ही है, अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ, तब आपने उसके अंदर ये डाई जो है वो डाल दी। ठीक है। ऑटोक्लेव से पहले इसलिए डाल दें कि हो सकता है डाई जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव ना हो, तो डाई कहीं वो ना कर जाए। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लिटरेचर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुछ डाइज जो है वो स्टेबल होती हैं, तो आप उनको शुरू में डाल दें, फिर ऑटोक्लेव करें और उसके बाद उनको प्लेट पे शिफ्ट कर दें। ठीक है। तो आपकी डाइज जो है वो मीडिया के अंदर डाल देंगे और फिर आप क्या करेंगे, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगी तो आप स्ट्रीकिंग के थ्रू या स्प्रेडिंग के थ्रू अपना माइक्रोब इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे और फिर उसको इंक्यूबेशन में लगा देंगे। अगर आपका माइक्रोब जो है ऑर्गेनिक प्रोड्यूसिंग होगा तो वो डाई का कलर चेंज करवा देगा। इसी प्रोडक्शन की वजह से डाई जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो माइक्रोब होगा वहां पर कलर डेवलप करवा देगी। आप लोगों ने ब्लड एगर, चॉकलेट एगर, मैकॉनिक एगर ये सब पढ़ी नहीं है, तो उसके अंदर यही होता है कि डाइज डिफरेंट होती हैं जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। ईओसिन ब्लू डाई ग्रीन पढ़ी है किसी ने? ईओसिन एगर पढ़ी है ना? उसके अंदर ईओसिन डाई डालते हैं, ग्रीन कलर की वो डेवलप करती है कॉलोनी। बहरहाल ये आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा माइक्रो में, मैं थोड़ी हैरान हो गई। ये बेसिक ही है, ये कौन सा एडवांस है? डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज जो हैं वो तो बेसिक ही है। वो तो प्रैक्टिकल में हो गया ना, लिटरेचर में तो कुछ पढ़ा होगा, थ्योरी में तो पढ़ाई होगी कुछ ना कुछ। एक और सा माइक्रो का चले कोई नहीं, खैर पढ़ लें, अभी भी टाइम है, अभी पास आउट नहीं। सो ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये लाइन जो लिखी हुई है दैट कॉलोनीज आर सब कल्चर टू गेट टू मेक अ स्टॉक। तो स्टॉक कल्चर बनाने से पहले आपको सब कल्चरिंग 1 से 2 से 3 से 4 से 5 दफा रिपीटिशन करनी पड़ती है अपने सैंपल की, उसको मजीद क्लीन करना पड़ता है ताकि आपका जो अपना सैंपल है वो प्योर फॉर्म में आइडेंटिफाई होकर आपके पास आ जाए और बाकी यूजलेस जितने भी माइक्रोब हैं वो सारे डिस्कार्ड हो। ठीक हो गया। So the further testing is needed since inorganic acid bases are also metabolic product of microbial growth। अब ये भी जरूरी है कि खाली एक टेस्ट की बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये वो वाला माइक्रोब आ गया, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं ऑर्गेनिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। और उसके अलावा माइक्रोबियल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है माइक्रोब्स का, उसके दौरान भी तो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं ना। तो हो सकता है वो एसिड रिस्पॉन्स कर रहा हो ना, वो एक्चुअली में वो एसिड ना हो जो करेक्टरिस्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक टेस्ट जो है वो कंफर्मेशन नहीं करेगा। यू हैव टू अप्लाई अदर टेस्ट टू गेट कंफर्मेशन की जो माइक्रोब है ये वही पर्टिकुलर माइक्रोब है जो आप चाह रहे हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी डाला जाता है इस मीडिया में जिसमें आप चेक करते हैं ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइम। क्या बना लाइम? सॉल्ट है। सॉल्ट है ना। तो जब एसिड आएगा तो एसिड और सॉल्ट के रिएक्शन से क्या बनेगा? एसिड और सॉल्ट।
एसिड और बेस नहीं कह रही, एसिड और सॉल्ट का जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कोई गैस प्रोड्यूस होगी और साथ ही कोई एक ऐसा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा जो कि आइडेंटिफाइबल होगा। ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन सॉल्ट जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी ना, कार्बोनेट है यहाँ पे, और साथ ही साथ कोई ना कोई एक अदर कंपाउंड जनरेट करेगी जो कि क्या होगा, थोड़ा बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक टू न्यूट्रल इन नेचर होगा, उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्स कलर डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्लियर जोन बनाता है उस माइक्रोब के अराउंड, तो एक क्लियर कॉलोनी डेवलप होती है कैल्शियम कार्बोनेट के इनकॉर्पोरेशन से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आप डाइज के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी डालते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोब्स जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको आपने क्राउड प्लेट कल्चर मेथड से करना है, क्राउड प्लेट टेक्निक से। यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी का ही पता चलेगा कि ये जो एंटीबायोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कितनी सेंसिटिव है, आपको यहाँ नहीं पता चलेगा। यहाँ सिर्फ क्या है, आइडेंटिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है ये टेक्निक। ठीक है, इसमें डाइल्यूशंस बनानी पड़ेंगी एंड देन यू हैव टू पोर एंड स्प्रेड द सॉइल सैंपल, और जो भी आपका सैंपल है उसको करना पड़ेगा ताकि 300 टू 400 कॉलोनीज पर प्लेट आए। ये बहुत ज्यादा प्लेट कॉलोनी है, तो इसीलिए ऐसे ये डाइल्यूशंस करते हैं ताकि ये कॉलोनी नंबर जो है वो फाइन होता चला जाए और आपके पास सिर्फ वही कॉलोनीज आए जो कि जिनको आप मजीद आइसोलेट करके। एक बात और भी है कि जब आप सब कल्चरिंग करते हैं ना तो प्लेट पे जो चीज आ रही है उसमें से आपने हर कॉलोनी, एक तो होता है विजुअल इम्पैक्ट कि वो कॉलोनी, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है कि कॉलोनी देखने में कैसी है, पाउडरी फॉर्म है, अपेयरेंस है, ओपेक अपेयरेंस है, क्लाउडी अपेयरेंस है, इन सब बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल माइक्रोब। नॉट ऑब्वियसली दे आर नॉट कंफर्म, बट आपके पास एक पोटेंशियल होता है कि ये वाला माइक्रोब जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर क्या कहते हैं बेसिलस है या स्टेप्टोकोकस है, तो स्टेप्टोकोकस की जो कॉलोनी होती है वो बड़ी स्लाइमी सी होती है, उसकी अपेयरेंस ही पता चलती है, मिल्की सी और स्लाइमी स्टिकी सी होती है। ठीक है, इसके मुकाबले में जो आपके पास एक और माइक्रोब होता है उसकी कॉलोनी जो है वो पाउडरी अपेयरेंस की, ड्राई सी होती है, तो ये चीजें देखने से ही पता चल जाती हैं। ठीक हो गया, तो आप जब वो कॉलोनी को विजुअली थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो आप उसमें से एक जैसी जो देखने में कैसी लग रही होती है उनमें से एक कॉलोनी को उठा के उसको सबकल्चर करके उसके टेस्ट लगा देते हैं और दूसरी कॉलोनी को आप रीडाइल्यूट करके स्ट्रिकिंग करके आगे चला देते हैं। बात समझ आ रही है कि आपने कॉलोनी, वो जो आपका एक सोर्स है सिंगल कॉलोनी है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप उसे एक कॉलोनी को उठा के उससे स्ट्रिकिंग भी कर देते हैं एक प्लेट के ऊपर ताकि मजीद रिफाइन आपके पास कॉलोनीज आ जाएं, और एट द सेम टाइम उसी कॉलोनी का एक छोटा सा 20 ml के मीडिया के अंदर डिसॉल्व करके उसके आगे टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आप दो काम एक साथ कर रहे होते हैं यहाँ पे। बात समझ आ रही है, इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये रिगरस सिलेक्शन मेथड होता है माइक्रोब्स का। ठीक हो गया जी। सो कॉलोनी शोइंग द एंटीबॉडी एक्टिविटी दे आर इंडिकेटेड बाय द जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड द कॉलोनी। जोन ऑफ इनहिबिशन अगेन क्लियर जोन ही होता है जोन ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां वो माइक्रोब्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पर कोई भी और माइक्रोब ग्रो नहीं करेगा, वो अकेला खुद ही वहां पर होगा उस एरिया में। ठीक है, ये देखिए सॉइल सैंपल आपने लिया, उसकी सॉइल सैंपल की डाइल्यूशन करके आपने सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है, पहले होता है एक जनरल मीडिया, फिर होते हैं सिलेक्टिव मीडियाज। ठीक है, आपने उसको ग्रो किया। ठीक है, कॉलोनीज ऑफ स्टेप्टोमाइस स्पीशीज जो है वो उन्होंने अपना हमें नहीं पता अभी कौन सी कॉलोनी है, हमें सिर्फ कॉलोनीज आई हमारे पास। ठीक है, उन कॉलोनीज को आपने इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका जो भी स्पेसिफिक स्टेप्टोमाइसिस जो है वो क्या करती है, स्टेप्टोमाइसिस जो है वो एक एंटीबायोटिक है इटसेल्फ। ठीक है ना, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में किसी और माइक्रोब को ग्रो नहीं होने देगा। ठीक हो गया, तो आपके पास इस प्लेट के ऊपर जो कि क्या है, सॉइल सैंपल है जिसके अंदर ढेर सारे माइक्रोब्स हैं मौजूद,
जब आप उसको कल्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास नॉन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल अपनी अपनी कॉलोनी देंगे, उनके इर्द गिर्द कोई जोन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनके इर्द गिर्द आपको क्लियर जोन्स मिलेंगे। ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसको आप लेके मजीद डाइल्यूशन करेंगे, उसकी मजीद सब कल्चरिंग करेंगे, एगर में ग्रो करेंगे उसको। ठीक है, और फिर उसकी आगे मजीद प्लेटिंग करके उसकी आइडेंटिफिकेशन बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोई स्पेशल मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है, उसको अगर आपने अगर आपका पोटेंशियल टारगेट है, उसके लिए आप क्या करते हैं? ऑक्सेनोग्राफी टेक्निक जो है उसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी ऐसा माइक्रोब जो कि कोई ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है, कोई विटामिन प्रोड्यूस करता है, कोई अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा सेलुलरली, मतलब अपनी सेल से बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, एक तो होता है ना इंटरसेलुलरली सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरसेलुलरली प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन्स भी और हार्मोन्स भी और अमाइनो एसिड्स भी। लेकिन एक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करके मीडिया में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट प्लेट बनाएंगे जिसके अंदर आप क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर जो है उसको पेटल डिश की बॉटम पे रखेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया ग्रो का बना के उस फिल्टर पेपर के ऊपर आप डाल देंगे। ठीक है, तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर वो मीडिया पेटेड प्लेट के अंदर क्या करेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। सॉइल सैंपल को आप डाइल्यूट करेंगे और प्रॉपर कोई सी भी डाइल्यूशन उसकी जो है उसको उस फिल्टर पेपर के ऊपर जो एगर है उसके ऊपर ग्रो करा लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आप सेकंड प्लेट प्रिपेयर करेंगे और सेकंड प्लेट के अंदर क्या खासियत होगी कि वो मिनिमल मीडिया कंटेन किया हुआ होगा उसमें। मिनिमल मीडिया जो कि क्या है, माइक्रोब की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके अंदर इनफ न्यूट्रिएंट है लेकिन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई ना कोई डेफिशिएंट एक चीज उसके अंदर लाजमी है। ठीक है, तो क्या होगा, मिनिमल मीडिया लैकिंग द ग्रोथ फैक्टर, जिसके अंदर कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं है वो बनाएंगे आप, और उसके अंदर भी एंड सीडेड विद द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसका आपको पता है कि इसने ये ग्रोथ फैक्टर खुद बना लेना है और सिंथेसाइज कर जाना है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं है वो क्या करेंगे, इसके ऊपर वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। बात समझ आई नहीं आई? मिनिमल मीडिया का मतलब ये है कि कोई एक ग्रोथ प्रमोटिंग चीज जो है वो मिसिंग है उसके अंदर, और वो चीज जो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है। अगर तो वो कर सकता होगा तो वो उस मिनिमल मीडिया में ग्रो कर जाएगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो मिसिंग ग्रोथ न्यूट्रिएंट को बना सके तो वो उस मीडिया पे के ऊपर सरवाइव ही नहीं करेगा। समझ आ गई बात की? So the second medium is poured onto fresh petri plate and the plate is allowed to set. ठीक हो गया। आपने क्या किया है कि फिर आपने जो अपना सीडेड मीडियम था, मतलब जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिज्म टेस्ट का है, और एक क्या है, सॉइल सैंपल है आपका। सॉइल सैंपल के अंदर आपके सारे के सारे ग्रो करेंगे। ठीक हो गया। दूसरे के अंदर आपके सिर्फ वो ग्रो करेगा जो इसके अंदर क्या होगी, वो पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होगी। So the agar in the first plate is lifted and placed on the second plate without inverting. आप ग्रोथ फिल्टर पेपर मतलब बीच में होगा, निचली वाली प्लेट ऊपर वाली प्लेट जो एगर की हैं स्टैक्स, उनके बीच में क्या है, फिल्टर पेपर होगा। The growth factor produced on agar can diffuse into the lower layer containing the test media. ऊपर वाले मीडिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अगर ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है तो वो जैसे सिक्रीट करेंगे वो फिल्टर एगर को क्रॉस करके नीचे वाले मीडिया में चला जाएगा। ठीक हो गया। द जोन ऑफ स्टिमुलेटेड ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड कॉलोनीज इंडिकेटेड दैट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर एक्स्ट्रासेलुलरली। वो जो सीप आउट करके नीचे गया है और नीचे वाले जिसके अंदर ग्रोथ मीडिया मिसिंग है, ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूसिंग मीडिया मिसिंग है, वहां पर आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अगर वो ग्रो कर जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि आपके मीडिया के अंदर, आपके इस सैंपल के अंदर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलरली सिंथेसाइज्ड जो भी मेटाबोलाइट है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। बात समझ आई या नहीं आई? आई है लेकिन थोड़ी थोड़ी मिसिंग है। ठीक है जी। अगर टॉक्सिक तो नहीं, टॉक्सिक इतना नहीं करेंगे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव्स हमने पहले ही निकाल दिए।
ठीक है ना। हमने लेकर जाना है किसको, कहाँ पर, फर्मेंटेशन की तरफ, और फर्मेंटेशन की तरफ हम किसको लेकर जाते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। हम बात ही उन्हीं की कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेथड जी, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। ये जी बिजनिक ने इसको डिजाइन किया था, एंड आइसोलेट द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हेटेरोजेनस माइक्रोबियल पॉपुलेशन। आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उस तरह का अगर कोई सेटअप हो तो उसके लिए आप इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं जी, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को इनोकुलेट करना है अपने सोर्स मटेरियल से और इंक्यूबेट कर देना है। उस मीडिया की स्मॉल पोर्शंस को प्लेट करना है सॉलिड मीडिया पे, एंड वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज को ऑब्टेन करना है, ठीक है। बेसिक मेथड सबके अंदर वही है जो मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक हो क्या। Suspected colonies from the plate are subcultured on fresh media and subjected to further testing. आपकी जो पोटेंशियल टारगेटेड आपको लग रहा है कॉलोनी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें विजुअली अंदाजा हो जाता है कि ये कौन से माइक्रोब्स की कॉलोनी है। तो हम सस्पेक्टेड कॉलोनीज जो हमें लग रहा है कि ये हमने लिटरेचर में पढ़ा है कि ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि कुरानी बैक्टीरियम जो कि चीज में यूज होता है, उसकी अपेयरेंस जैसे वो क्रीमी सा आता है, उसकी टेक्सचर ही क्रीमी सा होता है, ठीक है। तो वो हम उसको उठा लिया हमने, उसको हम आगे मजीद कल्चर मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया जो कि क्या होता है विदाउट एगर, उसके अंदर ग्रो करके फिर उसको मजीद प्लेटिंग की तरफ लेकर जाते हैं, और फिर हम उसमें से उसके साथ साइड बाय साइड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक करते चले जाते हैं। फिर हमें कंफर्म हो जाता है डाटा के जब एंड में आता है कि मेरा दिल कर रहा है मैं आपको अपना वो बच्ची का थीसिस दिखाऊं, उसने बहुत काम किया था। मतलब ये बहुत ज्यादा इसके अंदर टेस्टिंग करनी होती है और याद रखना होता है कि कौन कॉलोनी को नंबर देने पड़ते हैं जो एक जैसी नजर आ रही है। अगर वो ए कह दिया A1 A2 A3 A4 5 इस तरीके से तीसरी चौथी पांच, इवन के सैंपल बेसिस पे आप जो है ना इसको नंबरिंग करते हैं। जब आप उसको ले उसका डाटा पाइल अप करते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ा सारा टेबल और बहुत सारे उसके अंदर प्लस माइनस ये वो सब कुछ होता है उसके अंदर। तो इतना रिग्रेस ये काम है, ठीक हो गया। ये है जी वो इनरिचमेंट कल्चर, आइसोलेटिंग एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। आपने मीडिया बनाया है, ठीक है जी। मीडिया के अंदर आपने जो आपके न्यूट्रिएंट सोर्स है उनमें से एक सोर्स मिसिंग कर दिया है, वो आपके पोटेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में उनके लिए नहीं है, ठीक है। आपने अपना सैंपल डाला, सैंपल के अंदर ऑब्वियसली सॉइल सैंपल है या फूड सैंपल है, उसके अंदर 2 से 4 माइक्रो टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं। तो जिसका रिस्पेक्टिव यहाँ पर मीडिया होगा उसका नंबर बढ़ जाएगा, बाकी सबका नंबर कम हो जाएगा। इसको फिर आप सब कल्चर करने के बाद वो प्लेट आएगी जो यहाँ पे एक सिंगल प्लेट नजर आ रही है, इसके अंदर आपको प्योर कल्चर नजर आ रहा है, ठीक है। ये इनरिचमेंट मीडिया है। एक के बाद आप दूसरे में शिफ्ट करते हैं, तीसरे में शिफ्ट करते हैं, आपका अपना माइक्रोब पोटेंशियल माइक्रोब जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं कि हम उसे कॉन्सेंट्रेट कर। इसके बाद है सेकेंडरी स्क्रीनिंग। सेकेंडरी स्क्रीनिंग जो है वो सिस्टमैटिक है इस लिहाज से कि आपने इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपने पहले पॉइंट आउट करनी है कि ये उसके अंदर है भी या नहीं है। मतलब जो आपने प्राइमरी स्क्रीनिंग करके माइक्रोब निकाला है, हो सकता है कि वो उसकी कैपेसिटी ना हो कि वो फर्मेंटेशन की तरफ जा सके, ठीक है, या वो सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस कर सकता है एथेनॉल, वो एक बल्क अमाउंट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे माइक्रोब को आप लेकर जाना आगे जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी दोनों है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है वो आपने देखनी होती हैं। इट इज यूजफुल इन सॉर्टिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव रियल कमर्शियल वैल्यू। वही बात, एक कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक हो गया। द ऑर्गेनिज्म हैव पुअर एप्लीकेबिलिटी इन फर्मेंटेशन आर डिस्कार्डेड। वही बात मैंने भी कर दी कि अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो उसको आपने आगे नहीं लेकर जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना उसके ऊपर। नेक्स्ट, it provides the information whether the product formed by microorganism is new or not। ये बहुत जरूरी है कि आपने इतनी मेहनत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला है, आइसोलेट किया है, किसी भी सोर्स से किया हो, कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो न्यू है या नहीं है। मतलब न्यू से मुराद ये कि कोई बहुत तूफानी चीज नहीं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी एप्लीकेबिलिटी ज्यादा है या नहीं, ठीक है। एंड दिस मे बी अकम्प्लिश्ड बाय पेपर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट, अब जैसे एक माइक्रोब सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, किसकी लें, स्ट्रेप्टोकोकस ने क्या करना है, स्ट्रेप्टोकोकस ने क्या करना है। हम किसी बेनिफिशियल माइक्रो, हम उसकी ले लेते हैं ना, लैक्टोबैसिलस की एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब
एक हमें पता है एस्टैब्लिश कि लैक्टोबैसिलस की ये स्पीशी तो प्रोड्यूस करती है जो है ना लैक्टिक एसिड। उसके मुकाबले में एक कोई नई स्पीशी पे चली है जी कि ये भी लैक्टोबैसिल, ये भी जो है ना योगर्ट को कन्वर्ट कर देती है, ये भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग है। अब आपने दोनों को कंपैरिजन करना है। अब दोनों को कंपैरिजन करने के लिए जो उनकी प्रोडक्ट है ना उसको आप कंपेयर करेंगे। और वो कंपेयर आप कैसे करेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं अगर वो विजुअली कोई इफेक्ट देती है। उसको आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं कौन कौन सी हैं? वाह बड़े हो गए, एचपीएलसी पे चले गए। उसके अलावा बीच में काफी है, जेल एक्सक्लूजन है, आयन एक्सचेंज है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, एंड देन एचपीएलसी। एचपीएलसी बड़ी ऊपर की चीज है, ठीक है, लेकिन नो डाउट एचपीएलसी भी करते हैं हम डिफरेंस देखने के लिए, ठीक है। तो उसको उसकी बेसिस पे फिर आप ये स्टैब्लिश करके कि वाकई उसमें कोई फर्क है प्रोडक्ट में, या ये कि उसका यील्ड ज्यादा है लैक्टोबैसिलस की पुरानी स्पीशीज के मुकाबले में या एस्टैब्लिश स्पीशीज के मुकाबले में, तो आप फिर उसको आगे लेकर जाएंगे, उसकी सेकेंडरी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसकी प्रोडक्ट, लाइक यूवी लाइट एब्जॉर्प्शन में कोई अलग पैटर्न, कोई करेक्टरिस्टिक पैटर्न देती हो, फ्लोरेसेंट इन नेचर हो, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन टू बी यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मतलब कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक अगर उसके अंदर है तो उसको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक ये है कि आपको पता ही ना चले वो फ्लोरेसेंस थी, आप उसके ऊपर टाइम लगाए गए और आप उसको यूवी में चेक करते रहे, बल्कि आप फ्लोरेसेंट में चेक करते तो जल्दी टाइम गुजर जाता, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने सब चीजों को अपने जहन में रखना है, किसी को भी स्किप नहीं करना होता जब आप इस तरह की रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। it is conducted on agar plate, flask, small fermentation media containing liquid containing media। एक और चीज प्राइमरी हो गई सिलेक्शन, आपको समझ आ गई कि ये माइक्रोब का प्योर स्टॉक आ गया आपके पास। आपने उस माइक्रोब को एगर पे भी ग्रो करना है, उसे स्मॉल फ्लास्क लिक्विड मीडिया में भी ग्रो करना है, ये देखने के लिए कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन, मतलब ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको, या मुख्तलिफ मीडिया की कंसंट्रेशन के ऊपर मुख्तलिफ इनोकुलम्स या इवन के कॉलोनी नंबर की बेस पे, मतलब एक के अंदर कॉलोनी नंबर, एक इनोकुलम जो है वो बहुत फ्रेश है, सेल नंबर कम है, एक इनोकुलम जिसके अंदर सेल नंबर थोड़ा सा एडवांस है लेकिन अभी इतना फ्रेश नहीं है, इस तरह टाइम बेसिस पर आप उसके अंदर इनोकुलम लगाते हैं, ठीक हो गया। और फिर आप चेक करते हैं यील्ड कितनी है। हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो कि उनके 200 CFU अगर हो तो वो बहुत अच्छा आउटपुट दें, कुछ ऐसी है कि जिसका इनोकुलम ही 1000 CFU पे जाके लगाना पड़ेगा तो वो प्रोडक्ट देगी, तो आप किसको चूज करेंगे? जो इनोकुलम कम के साथ ज्यादा प्रोडक्शन देगी वो ज्यादा अच्छा है, या जो ज्यादा इनोकुलम के साथ थोड़ी प्रोडक्ट दे रहा है वो अच्छा है? इवन के ज्यादा इनोकुलम के साथ ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो भी ठीक नहीं है, बात समझ आ रही है? तो ये सब चीजें आपने प्री डिटरमाइन करानी है चीज को आगे लेकर चलने से पहले। उसके अलावा इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई न्यूली डिस्कवर्ड माइक्रोब आइडेंटिफाई किया है तो वो कितनी उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, क्या उसकी कॉस्ट आएगी, फर्मेंटेशन की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है उसके साथ, ये बहुत जरूरी है। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कॉस्टली है तो क्या आप फर्मेंटेशन करेंगे उसके साथ? जो प्रोडक्ट आएगी वो इतनी महंगी होगी लेगा ही नहीं, फिर उसको संभालना, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो सब कुछ भी आपने एडअप करनी है, ठीक है। तो वो तो फिर चीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चली जाएगी, ठीक हो गया। और रिगार्डिंग द प्रोडक्ट की अगेन कोई बात आ गई। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशंस मैंने पहले ही बताया कि जो मैंने भी बता दिया है कि हम ये सारी चीजें सेकेंडरी स्क्रीनिंग करने से पहले नोट करते हैं। उसके बाद अगर तो उसके अंदर पोटेंशियल हमें नजर आता है तो हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग की तरफ लेके जाते हैं, वरना फिर हम कहाँ जाएंगे? वापस प्राइमरी की तरफ और एक नया माइक्रोब ढूंढेंगे। समझ आ गई? Chemical, physical, biological property of the product are determined using secondary screening. माइक्रोब पसंद आ गया, ग्रोथ ओके हो गई, अब आ जाए प्रोडक्ट की तरफ। वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट की क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। It reveals whether a product is produced in a culture broth occur in more than one chemical form. क्या उसके स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, ये सब चीजें जरूरी हैं, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में चीज जा रही है उसका या जो कमर्शियली ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसके साथ कंपेयर करेंगे आप। क्योंकि देखिए जो ये
केमिस्ट्री है, ये जो स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है, ये इफेक्ट करती है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। बायोलॉजिकल को ना भी करे, प्रोसेस जो आप रन कर रहे हैं उसमें इफेक्ट करती है। जैसे कि आप देखें एल शुगर और डी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर कौन से एनी कॉमन है हमारे सेल बॉडी में, एल या डी? एल फॉर्म और शुगर्स डी फॉर्म। अब आपकी जो प्रोडक्ट बन रही है वो एल शुगर बनना शुरू हो जाए और आपने ठीक है बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, वो जो कंज्यूम करेगा उसका क्या बनेगा, वो फिर पहुंचा होगा कहीं, ठीक है ना? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। It detects gross genetic instability in microbial culture. This type of information is very important since microbes tend to undergo mutation and alteration in some way, lose their capability for maximum accumulation of the fermentation product. ये बहुत जरूरी है। Genetic instability. अगर तो माइक्रोब जो है वो genetic instable है, prone toward mutation, then can we use that type of microorganism? क्योंकि हमें पता ही नहीं इसने आज कुछ कर रहा है कल कुछ कर देना, ठीक है ना? जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसके अंदर बहुत फास्ट है, पेस बहुत हाई है उसका, तो क्या होगा कल को कोई म्यूटेशन करके आज प्रोडक्ट यूजफुल है, कल को कोई लीथल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे, टॉक्सिक बनाना शुरू कर दे, तो वो बहुत जरूरी है एस्टेब्लिश करना, ठीक है? It tells about the chemical stability of the fermentation product. It can be qualitatively or quantitatively in approach. आप जो प्रोडक्ट बन रही है जिसको फर्मेंटेशन में लेकर जाना है उसकी सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस और उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस सारे कराने पड़ते हैं आपको, कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी में सारी चीजें आ जाएंगी जो मैं आपको बताती हूँ। This is the last slide. Example of secondary screening test होना है, antibiotic producing Streptomyces species. Streptomyces isolates are streaked as a narrow band on mutant agar plate, are incubated. टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको भी आप प्लेट पे स्ट्रीक करते हैं विदाउट टचिंग द स्ट्रेप्टोकोकल। हम जब लैब में काम किया करते थे ना, हमारे पास भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते थे, हम चूंकि क्लोनिंग करते थे, तो हमारी एक प्लेट के ऊपर 16 टाइप ऑफ माइक्रोब्स ग्रो करते थे हम, एक प्लेट पे, प्योर कल्चर में जी। तो कैसे? हाँ, एक जिस तरह एक पिज्जे के 8 पीसेस नहीं होते, उस तरह उस प्लेट की आउटर साइड पे स्केल से हम उसकी डिवीजन बनाते थे और हर पोर्शन को मेंशन करते थे कि इसके अंदर ये वाला माइक्रोब है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और उस पर फिर स्ट्रिकिंग करते थे, मार्कर नहीं है। तो वो एक पर्टिकुलर, वो जो एक ट्रायंगुलर पिज्जा स्लाइस एक बनता था, उसके अंदर वही माइक्रोब हुआ करता था। इतनी सी प्लेट होती थी। नॉर्मली जो बैटरी प्लेट है आपकी, ग्लास तो फिर भी बड़ी है, प्लास्टिक प्लेट उससे छोटी होती है, प्लास्टिक प्लेट में, लेकिन ये है कि उसको रिफ्रेश करते थे हम 10 दिन बाद, ठीक है ना, ताकि वो उसके अंदर कंटामिनेशन या ओवर ग्रोथ ना हो जाए उसकी, ठीक हो गया? तो बिल्कुल यहीं पर बताने का मकसद ये है कि ये आप इसको बड़ी चीज ना समझ लें कि स्ट्रेप्टोकोकस जो आपकी आइसोलेट है उसको भी उसी प्लेट पे करना है, टेस्ट ऑर्गेनिज्म को भी उसी प्लेट पे ग्रो करना है, लेकिन टच ना हो आपस में, ठीक है? एंड देन द प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड। एट द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन, growth inhibition inhibitory zones of each organism are measured in millimeters. Streptomyces ने क्या करना है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी है, को ग्रोथ जोन देना है, जो आपको टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम समझ रहे हैं कि ये वाली एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, उसने भी जोन प्रोड्यूस करना है, दोनों के जोन को कंपेयर करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि जो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो स्ट्रेप्टोमाइसिस के लेवल का काम कर रहा है, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को फिर आगे मजीद सब कल्चर करके उसकी प्योर लाइन जनरेट करेंगे और इस तरीके से आपके पास की सेकेंडरी ट्रीटमेंट या स्क्रीनिंग मेथड है, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो बताएं।